Good morning, students. Today we will discuss about new chapter which belongs to physics, and the name of the chapter is motion. In this chapter we will discuss about the moving objects and some related terms. The topics which we have to cover in this lecture are motion and rest, distance and displacement, uniform motion, non-uniform motion. Then we will talk about speed, velocity and acceleration. So let us start. What is motion and rest? Now see, there is a ball. This ball is stationary. There is a car. It is again stationary, and a person is there. Now in first case, ball is at rest with respect to stationary man, and now the car is also at rest with respect to stationary man. Now the ball is moving with respect to stationary man, and this car is moving with respect to stationary man. Then we may define motion. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings and with time. That means if any object changes its place with time, then we say that it is in motion. कोई भी ऑब्जेक्ट जब टाइम के साथ अपनी प्लेस को चेंज करता है तो हम कहते हैं कि ये मोशन में है। और किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा? सराउंडिंग्स, आसपास के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब हम कहते हैं कि ये मोशन में है। एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन: a moving car, bus, train, cricket ball, and etc. All the planets revolving around the sun. The molecules of a gas in motion above 0 Kelvin. That means 0 Kelvin is the temperature, lowest possible temperature. Above this temperature, all gas molecules are in motion. Therefore, these are some examples of motion. You can have more examples. You may think about some other examples of motion, such as moving ball, moving car, running athlete, and so many. Now, how can we define rest? An object is said to be at rest if it does not changes its position with respect to its surroundings and with time. That means if object is stationary and it is not changing its place with time, then we may say that it is at rest. Now we will see some examples of rest. Mountains, buildings, you may add trees. Then rest and motion are relative terms. That means relative means they are something dependent to each other. Two objects may be at rest with respect to each other, but they may be moving with respect to surroundings. Suppose you and your friend are running together, and you both are running together, then definitely with respect to each other you both are stationary, but with respect to other persons or with respect to road you are in motion. Let us see. An object which is at rest can also be in motion simultaneously. That means कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो साथ के साथ मोशन में भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप और आपकी फ्रेंड एक ही साथ दौड़ रहे हैं तो आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आगे या पीछे नहीं जाते हैं, साथ साथ जाते हैं। दैट मीन्स आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, लेकिन रोड या जहाँ पर आप जिस सरफेस पे आप मूव कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, आसपास के ट्रीज़ के रिस्पेक्ट में, बिल्डिंग्स के रिस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हैं। तो आप साथ साथ स्टेशनरी भी हैं और मोशन में भी। स्टेशनरी कब है? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और मोशन में कब है?
आप ग्राउंड या अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बस में बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे रहते हैं, सभी पैसेंजर्स एक साथ बैठे हैं तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। लेकिन अगर बाहर से कोई पर्सन देखता है तो वो डेफिनेटली क्या कहेगा कि बस में जितने भी पैसेंजर्स हैं वो मूव कर रहे हैं। तो किसी के लिए आप मोशन में हैं और किसी के लिए आप रेस्ट में हैं। और ये बात यही समझाना चाह रहा है कि दे आर टू ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट कैन ऑल्सो बी इन मोशन। आप एक ही समय पे रेस्ट और मोशन दोनों में रह सकते हैं, और इसीलिए रेस्ट और मोशन को रिलेटिव कहा जाता है। नाउ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज अ पर्सन इज़ देयर, कार इज़ देयर, नाउ द कार इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। सेकेंड कार, it is again in motion. Now both the cars are there, both are at rest. See, आपने देखा कि दोनों कार एक साथ मूव कर रही हैं, तो पर्सन के रिस्पेक्ट में दोनों कार तो मूव कर रही हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों कार्स रेस्ट में हैं। इसी तरीके से मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। इसको और ईजिली समझा जा सकता है इस एग्जांपल से। ये सन दिखाया गया है येलो कलर से, और अर्थ अपने एक्सेस पे मूव कर रही है, अपने ऑर्बिट पे मूव कर रही है, और एक्सेस के अबाउट रोटेट भी कर रही है। अब देखिए, आपने पीछे के जितने भी एग्जांपल्स देखे, चाहे वो बॉल हो, कार हो, और सारी की सारी चीज़ें मैन के रिस्पेक्ट में मूव कर रही थी। लेकिन अगर पर्सन या मैन अर्थ पे है तो द मैन इज़ स्टैंडिंग ऑन द अर्थ एंड द अर्थ itself moves around the sun as well as rotates about its own axis। तो अर्थ अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट भी कर रही है और मूव भी कर रही है, जैसे आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं। तो जब ऐसा होगा तो अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो भी रोटेट करेंगी और मूव करेंगी। तो अगर स्पेस से आप देखें तो पर्सन, कार्स, बॉल और कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे है वो एक कंटिन्यूस मोशन में है। लेकिन अगर आप अर्थ के रिस्पेक्ट में देखें तो एक जगह पर्सन जो है रेस्ट में था, बॉल भी रेस्ट में थी, कार भी रेस्ट में थी। कुछ देर बाद बॉल मूव करी, फिर कार भी मूव हुई, दोनों कार एक साथ मूव हुई। तो उनकी मोशन अगर है तो वो अर्थ के रिस्पेक्ट में है। एंड आई होप कि अब ये क्लियर होगा कि मोशन और रेस्ट रिलेटिव कैसे हैं, क्योंकि किसी एक चीज़ के रिस्पेक्ट में एक कंडीशन में ऑब्जेक्ट मोशन में है और किन्हीं दूसरे कंडीशन में वही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है। मैन इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बट इज़ रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन। स्पेस के रिस्पेक्ट में पर्सन मोशन में है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। दैट इज़ वाई मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। नाउ रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। जब कभी भी आप मोशन को डिफ़ाइन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मूव करने के प्लेस को, कि कहाँ से कहाँ तक मूव किया है, कितनी जल्दी मूव किया है, इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक कोई पॉइंट हो, फिक्स पॉइंट, जहाँ से आप डिस्टेंस मेज़र कर सकें कि कितना दूर वो गया है। तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। दैट रेफरेंस पॉइंट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओरिजिन। क्या रेफरेंस पॉइंट्स हो सकते हैं? While describing motion, we use reference point or origin with respect to which the motion of the other bodies are observed। जिसके रिस्पेक्ट में बॉडीज़ की मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अपने घर से स्कूल के लिए आ रहे हैं या घर से मार्केट के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने घर को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। और जब आप मूव करेंगे तो आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि मैं अपने घर से अब इतना दूर हूँ, अब मैं मार्केट में पहुँचने वाला हूँ। जब आप वापस आते हैं तो भी आप रेफरेंस पॉइंट घर को लेते हैं कि अब मुझे इतना टाइम अब मैं घर के पास हूँ, अब मैं घर से इतना दूर हूँ। तो घर को आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं ग्राउंड में आप मूव कर रहे हैं, और ग्राउंड में अगर आप मूव कर रहे हैं तो ग्राउंड में भी किसी भी पॉइंट को, एक पॉइंट को आप फिक्स कर सकते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट है। सपोज़ आप फुटबॉल खेल रहे हैं
और आप बॉल को एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट तक ले जाना चाहते हैं तो आप गोल पोस्ट को भी रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं. Now in the previous example, a man at rest is used as a reference point or origin. We can use any object as a reference point. For example, a car at rest or in motion can be used as a reference point. जो examples मैंने दिए वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. Now, when you travel in a bus or train, you can see the trees, buildings and the poles moving back. And to a tree you are moving forward, and to a tree you are moving back. Both you and tree can serve as reference point, but motion cannot be described without reference point. आप अपने आप को भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं और आप ट्रीज़ को भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं. यानी अगर ट्री के रिस्पेक्ट में है तो आप ट्री से दूर जा रहे हैं, और अगर आप अपने रेफरेंस में लें तो ट्री आपसे दूर जा रहा है. ऐसा समझा जा सकता है. नाउ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ऑब्जेक्ट्स जब मूव करते हैं तो सिंपलेस्ट आइडिया और सिंपलेस्ट वे है मूव करने का कि ऑब्जेक्ट्स एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करें, और इस टाइप की मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं आप. देन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं. द मोशन ऑफ अ बॉडी may take place in one dimension, that is in a straight line. This can be represented graphically by plotting a graph between the position of the body and the time taken by it. This is called position time graph. Now this is number line. Just like number line, there is a point 0 and there are the marks 10, 20, 30, 40, 50, 60 and so on to right side, and towards left -10, -20, -30. Now the distance measured to the right side of this line, to the right side of the origin, that is 0, of the position axis is taken positive, and the distance measured to the left of the origin is taken as negative. The origin for position can be shifted to any point on the position axis. ज़रूरी नहीं है कि आप 0 को ही ओरिजिन लें, आप 10 को, 30 को, 40 को या -10 या -30 इनको भी ओरिजिन कंसिडर कर सकते हैं. Now the distance between 2 points on position axis is not affected due to the shift in the origin of the position axis. अगर आपने जो है कोई पोजीशन चेंज कर दिया ओरिजिन का तो दो स्पेसिफिक पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है. जैसे आपने इनिशियल पॉइंट 20 लिया, फाइनल पॉइंट आपने 50 लिया और ओरिजिन आपने रखा 0, तो डिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो पहले आप 20 मार्क पे थे, बाद में आप 50 मार्क पे चले गए, तो कितना मूव किया आपने? 50 - 20 30. अगर आप यही ओरिजिन -10 पे कर दें तो अब डिस्टेंस आप कहाँ से मेज़र करेंगे? -10 से. -10 से 50 तक, फिर -10 से 20 तक. डिफरेंस निकालिए तो फिर से डिफरेंस आपका 50 - 20 30 ही आएगा. नाउ व्हाट इज़ डिस्टेंस एग्जैक्टली? It is distance traveled by a body is the actual length of the path covered by it, irrespective of the direction in which the body travels. For example, अगर आप अपने घर से अपने फ्रेंड के घर पे जाते हैं तो जिस रास्ते से अपने फ्रेंड के घर पे आप गए उस रास्ते की जो टोटल पाथ आपने लिया उस पाथ की लेंथ को आप डिस्टेंस कहेंगे, और किस डायरेक्शन से गए ये मैटर नहीं करता है. सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं. एक पर्सन है, ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कुछ टर्न किया इन्होंने और एक अलग डायरेक्शन में मूव किया. पहले 5 बाद में 2, तो टोटल कितना होना चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड? 5 + 2 7 किलोमीटर्स. एक और एग्जांपल ऐसे ही लेते हैं.
पर्सन ने मूव करना शुरू किया और 5 किलोमीटर्स तक ये जो है ईस्ट डायरेक्शन में है, फिर टर्न होके बैक टर्न किया और वापस आ गए, और जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आकर रुक गए। तो 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना, टोटल कितना हुआ? 10 किलोमीटर्स। आई होप डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगी कि आप जिस भी रास्ते पर जाते हैं उस रास्ते की कितनी लेंथ है, दैट लेंथ इज़ नोन एज डिस्टेंस। नाउ डिस्प्लेसमेंट। सपोज displacement of a body is the shortest distance between its initial position and final position along with direction। किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे अगर ऑब्जेक्ट है, इनिशियली पॉइंट ए पर है, फाइनली पॉइंट बी पर है, तो जब वो एक पॉइंट से स्टार्ट करके किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है तो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं ये पर्सन मूव करते हुए 5 किलोमीटर्स, देन टर्न किया आगे 2 किलोमीटर्स। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाइएगा, जहाँ से स्टार्ट किया था वो पॉइंट ध्यान रखिए और जहाँ पर पहुँचे हैं ये। नाउ दिस थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज़ डिस्प्लेसमेंट। और आप देख सकते हैं कि ये इनिशियल यानी शुरू वाली पोजीशन और फाइनल यानी लास्ट वाली पोजीशन, दोनों पोजीशन को सीधे स्ट्रेट लाइन से मिला दिया आपने, एंड दैट लेंथ इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज़ इन फैक्ट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस। और इसको आप जब मेज़रमेंट लेंगे देन द डिस्प्लेसमेंट कम्स है 6.57 किलोमीटर्स। ज्योमेट्री की हेल्प से ये निकाला जा सकता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नाउ द पर्सन इज़ मूविंग इन राइट टूवर्ड्स राइट साइड एंड टर्न्स अराउंड, और फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गए, यानी जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आ गए। तो 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों कोइंसाइड कर गई, यानी एक ही है। तो पर्सन एक्चुअल में मूव ही नहीं किया। आप ये कहेंगे कि इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इनिशियल ही फाइनल है, इसलिए इनका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और अगर ये पर्सन लेफ़्ट डायरेक्शन में और आगे बढ़ते स्ट्रेट लाइन में, तो इनका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता था। सपोज़ ये जो है इनिशियल पोजीशन से लेफ़्ट में 2 मीटर और बढ़ जाते तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता? -2 मीटर। तो आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। थोड़ा इसे और एक्सप्लेन करते हैं। एक बॉल पास फॉलो किया बॉल ने ACB, और अगर आप A और B को डायरेक्ट मिला दें तो ACB जो कर्व्ड पाथ है ये एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ है, इसको आप डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन A और B को डायरेक्ट मिलाने वाली जो लाइन है उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि A और B को मिलाने में केवल एक ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये एक ही डायरेक्शन हो सकती है A से B की तरफ, इसलिए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है और डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं क्या है ये। द डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअल वेक्टर क्वांटिटीज़ होती क्या हैं? ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू जैसे आपने किसी को डिस्प्लेसमेंट की बात करूं अगर आप, तो 5 मीटर 5 वैल्यू हो गई, मीटर बता रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट है। और अगर उसमें आप डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो एक फ़िक्स डायरेक्शन जब आप ऐड कर देते हैं तो 5 मीटर को आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और जब 5 मीटर में डायरेक्शन नहीं होगी तब ये डिस्टेंस होगा। और जिन क्वांटिटीज़ में डायरेक्शंस होती हैं उन्हें वेक्टर्स कहते हैं। तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? लेंथ की यूनिट जैसे ही होगी।
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। नाउ द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in a given time interval can be equal to or greater than the magnitude of the displacement. That means distance और displacement को अगर आप compare करें तो distance हमेशा displacement से बड़ा होगा या फिर displacement के equal होगा। distance कभी भी displacement से छोटा नहीं हो सकता है। It is either greater than or equal to displacement. The displacement of an object between 2 points does not tell exactly how the objects actually moved between those points. ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर आप ए सी बी की बात करें तो आपको पता चल रहा है कि किस पाथ से ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया है, लेकिन अगर केवल डिस्प्लेसमेंट होता तो ए से बी तक पहुंचने के बाद आप नहीं बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस पाथ से गया है। The displacement of a particle between 2 points is a unique path which can take the particle from its initial to final position. मैं इसको अभी एक्सप्लेन किया मैंने कि ए और बी को मिलाने वाली केवल एक ही लाइन हो सकती है, और एक ही लाइन होने का मतलब है यूनिक। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा यूनिक होगा किन्हीं दो पोजीशंस के लिए। The displacement of an object is not affected due to the shift in the origin of the position axis. और अगर आप जो है origin position axis का चेंज कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। फर्स्ट, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होंगी जिनमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होती हैं। सेकेंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो। डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, इवन नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। एक और डिफरेंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, डिस्टेंस की डेफिनेशन और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। जैसे डिस्टेंस के कॉलम में आप लिख दें, इट इज़ लेंथ ऑफ एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ टेकन बाय ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो ये थर्ड आपका डिफरेंस बन जाएगा। स्केलर क्वांटिटीज़ मैं बता चुका हूँ आपको क्या होती हैं। इसी तरीके से एग्जांपल्स स्केलर क्वांटिटीज़ के देख लीजिए, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड सो मैनी अदर्स। और भी बहुत सारी होती हैं। वेक्टर ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़, एक अभी आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, इसके अलावा वेलोसिटी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन भी, मोमेंटम एंड फोर्स नेक्स्ट चैप्टर में आप इनके बारे में पढ़ेंगे। स्पीड, नाउ अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है या धीरे धीरे मूव कर रहा है, इस बात को बताने के लिए जो टर्म आप यूज़ करते हैं, इट इज़ स्पीड। स्पीड इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, उसी को आप स्पीड कहेंगे। टाइम रेट का मीनिंग है कि डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड करेंगे, या फिर कैसे कह सकते हैं, स्पीड इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। सपोज स्पीड को आप v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को s से और टाइम को t से, तो फार्मूला के फॉर्म में आ जाएगा v इक्वल्स टू s अपॉन t। नाउ स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज़ आइदर पॉजिटिव और ज़ीरो बट नेवर नेगेटिव। स्पीड पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती है। एक और पॉइंट स्पीड का देखिए, स्पीड ऑफ अ रनिंग कार इज़ मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। जो भी व्हीकल्स हैं
चाहे वो 2 व्हीलर्स हों या 4 व्हीलर्स हों, उनमें स्पीड अगर आपको मेज़र करनी है तो स्पीड को मेज़र करने का डिवाइस स्पीडोमीटर। स्पीड इज़ मेजर्ड इन, अगर आप स्मॉलर यूनिट्स की बात करें तो CGS यूनिट में सेंटीमीटर पर सेकेंड, और SI यूनिट में मीटर पर सेकेंड, और प्रैक्टिकली लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए आप किलोमीटर पर आवर का यूज़ करते हैं। नाउ यूनिफॉर्म स्पीड। A body has a uniform speed if it travels equal distance in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be. इसका मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग होता है एक जैसा। तो कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड में है तो वो एक गिवन टाइम इंटरवल में, यानी एक फिक्स टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे इसी तरीके से आप यूनिफॉर्म मोशन के साथ साथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में या वेरिएबल मोशन या वेरिएबल स्पीड के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। अ बॉडी इज़ सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ़ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी। फर्स्ट केस में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले लें, डिस्टेंस अलग अलग है तो वेरिएबल स्पीड। और वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल मीन्स डिफरेंट, यानी बदलती रहती है, वेरी करती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। जैसे आप भीड़ भाड़ के किसी रास्ते में हैं तो आप कोई भी अगर व्हीकल, कोई बाइक राइड कर रहे हैं या फिर साइकिल राइड कर रहे हैं या कार में हैं, तो कभी कार की स्पीड ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो इस तरीके से जो स्पीड का वेरिएशन है, इसी को आप वेरिएबल स्पीड कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेरिएबल स्पीड वाली मोशंस नॉन यूनिफॉर्म मोशंस होती हैं। अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे ये एग्जांपल ये देख सकते हैं आप, कार की स्पीड पहले ज़्यादा थी, धीरे धीरे कम हुई और फाइनली कार रुक गई। नाउ एवरेज स्पीड। Average speed of a body is the ratio of total distance traveled to the total time taken to cover this distance। यानी अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करता है और किसी पॉइंट ए से फाइनली पॉइंट बी पर पहुंचता है, लेकिन डिफरेंट स्पीड्स उसकी जो है ए से बी तक जाने में है, तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ती है। आपको क्या करना होगा? टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी होगी और टोटल टाइम कितना लगा ये फाइंड आउट करना होगा। And by dividing total distance traveled to time by time, you can have average speed. It is total distance traveled by total time taken. V average equals to S total upon T total. Examples: let a car covers first 25 km in 1 hour, next 35 km in half hour, and last 30 km in 1 hour। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस देखिए टोटल कितनी हो रही है, 25 + 35 + 30, और टोटल टाइम कितना हो रहा है, 1 आवर + हाफ आवर + 1 आवर। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 36 km/h फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग होता है एट ए मोमेंट, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किसी भी टाइम पर उसकी मोशन की स्पीड क्या है, उसे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, यानी एट एनी मोमेंट, इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल मोशन में है तो हर एक इंस्टेंट पे उसकी मोशन बदल सकती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो हर एक टाइम पे उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। नाउ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी।
अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को आप वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम in a given direction. Velocity may be formulated as displacement upon time taken, और symbolic form में v equals to s upon t, where s is displacement and t is time taken. Now there are some points regarding velocity. Velocity is a vector quantity because it depends upon displacement. Displacement अगर vector है तो displacement को time से divide करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा जो कि वेक्टर क्वांटिटी होगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज़ द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ वेलोसिटी कैन बी आइदर पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकता है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकती है। वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड इन टू वेज। वेलोसिटी को अगर आप चेंज करना चाहें तो दो तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। कौन कौन? या तो आप ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ा दें या कम कर दें बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ओनली, कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट चेंजिंग द डायरेक्शन, और दोनों को भी कर सकते हैं। वेलोसिटी इज़ मेजर्ड इन, इसके यूनिट्स देख लेते हैं क्या होंगी। CGS यूनिट में इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड इन SI यूनिट इट इज़ मीटर पर सेकेंड। सेम जैसे स्पीड का यूनिट थी वैसे ही वेलोसिटी की भी यूनिट्स होंगी। एंड किलोमीटर पर आवर इन केस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस। नाउ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन in a straight line and moves over equal distance in equal interval of time, no matter how small these time intervals may be, and no effort or force is required to move the body with uniform velocity. डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, उसकी स्पीड ना तो कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, इसलिए कोई भी एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे मूव कर रही है वैसे ही मूव करती रहेगी। वेरिएबल वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो इसको वेरिएबल वेलोसिटी कहा जाता है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट्स स्पीड और इट्स डायरेक्शन और बोथ चेंजेस विद टाइम। एवरेज वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इट टू द टोटल टाइम टेकन। And average velocity is also given as initial velocity plus final velocity divided by 2. Initial means ऑब्जेक्ट ने जब मोशन स्टार्ट किया तब क्या वेलोसिटी थी, ऑब्जेक्ट जब अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया, फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया तब क्या वेलोसिटी थी। इनिशियल और फाइनल को ऐड करके 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप सिंपल एवरेज निकालते हैं तो ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी को u से और फाइनल को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 विल बी एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगेन वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेट अस सी सम डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। एक कॉलम में स्पीड ले लेते हैं, एक में वेलोसिटी। पहला जो डिफरेंस पॉइंट है ये आपका डेफिनेशन का ही आ सकता है। स्पीड इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, बट वेलोसिटी इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड पॉइंट, स्पीड टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, velocity is a vector quantity. Speed of the body can be positive or zero. Speed positive या ज़ीरो हो सकती है, but velocity it may be positive, zero or negative. Average speed of a moving body can never be zero. किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकती है, but average velocity can be
0 ऑल्सो। तो ये टोटल 5 डिफरेंसेस हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म एक्सेलरेशन। एक्चुअली अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, तो चेंज को डिफ़ाइन करने के लिए जो टर्म आप यूज़ करते हैं दैट इज़ एक्सेलरेशन। कितनी तेज़ी से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, ये इस चीज़ को बताता है। कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रही है, पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, उसी को आप एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज़ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, और it may be given as final velocity minus initial velocity divided by time taken. Suppose a body moving with initial velocity u changes to final velocity v in time t, then a equals to v minus u divided by t. कुछ important terms देखते हैं acceleration के बारे में. Acceleration is a vector quantity. Direction of acceleration is the same as the direction of change of velocity of the body, not velocity of the body, change of velocity of the body. Acceleration can be either positive, 0 or negative. Acceleration of a body is 0 when it moves with uniform velocity. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। यूनिट्स देखते हैं क्या होती हैं एक्सेलरेशन की। CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन आप SI यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और प्रैक्टिकली इट इज़ किलोमीटर पर आर स्क्वायर, बड़ी डिस्टेंसेस के लिए। नाउ इन अ सिमिलर वे, जैसे आपने वेलोसिटी और स्पीड के लिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा? अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज़ होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। एग्जाम्पल्स, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे आपने किसी बॉल को एक हाइट से ड्रॉप किया तो वो नीचे ग्राउंड तक आती है, तो जहाँ से आपने ड्रॉप किया वहाँ से ग्राउंड तक आने में बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और ग्रेविटेशन के चैप्टर में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है तो नीचे आने के लिए अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स से आता है, और उस समय जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा। आप इसको एनिमेशन से देख सकते हैं। दो सरफेस हैं, बॉल आपने हटाया, नीचे आई, और इस समय बॉल जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आएगी। और कोई इंक्लाइंड प्लेन लिया आपने, ये इंक्लाइंड प्लेन जैसे स्लोप्स होते हैं, आप कोई ऑब्जेक्ट इस पर रख दें, आप स्टॉपर हटाएं, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो भी इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगेन अ बॉडी इज सेड to be moving with non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount in equal interval of time. That means velocity में जो increase है वो given interval of time में अलग अलग increase होता है amount, तो इसे आप non-uniform acceleration कहते हैं। या फिर a body has non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate. Examples, the motion of a car on a crowded city road, its speed within bracket you can have velocity changes continuously.
क्योंकि स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्पीड का कम ज़्यादा होने से वेलोसिटी भी कम ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा एनिमेशन से दिखाया है, तेज़ हुई फिर धीमे हुई फिर चल पड़ी। तो अगर आप जो है किसी ट्रैफिक जाम में हैं तो इस तरीके से आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फील कर सकते हैं। रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन ऑफ और नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन एग्जैक्टली क्या है? अभी तक हमने जितने भी डिस्कशंस किए एक्सेलरेशन के लिए, हमने वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हुए डिस्कस किया। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है टाइम के साथ तो हम कहते हैं कि ये रिटार्डिंग मोशन है। और इस कंडीशन में या इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन कहा जाता है। यानी जब वेलोसिटी हायर वैल्यूज़ से लोअर वैल्यूज़ पे जाएगी यानी डिक्रीज़ करेगी तो डी एक्सेलरेशन आएगा। A body is said to be retarded if its velocity decreases with respect to time. थोड़ा एनिमेशन से आप देख सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा थी कार की, फिर से देखते हैं। यस, पहले ज़्यादा स्पीड थी और धीरे धीरे कम हुई और फाइनली कार रुक गई। दैट मीन्स कि वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी कम हुई है। दैट मीन्स कि इसकी मोशन रिटार्डेड है और इस सिचुएशन में आप डी एक्सेलरेशन टर्म यूज़ करते हैं। अ कार इज़ डी एक्सेलरेटिंग टू कम टू अ halt. This is all about motion up to the term acceleration. इसके बाकी जो अलग टॉपिक्स हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, वो हम लोग लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।